Rishi Kapoor was very fond of me, and so I was. And I have been till the end of life. Last days of his life also I met him, and he had some problem physical, and then he said, यार अब बहुत कर लिया मैंने, मैं जा रहा हूँ यार. तो मैंने ऐसा मत क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसे यार पता लग जाता है ज़िंदगी का कि अभी बाय बाय का टाइम आ गया है, अभी चलना चाहिए. इट्स ओके, फाइन, आई एम हैप्पी. Hello, sir. Welcome to The Quint. Thank you so much for making the time. When Cars released 45 years ago, today we are sitting here celebrating such a memorable film at the Red Lorry Film Festival. That time it opened only to 20% box office collection. When you look back at the sets, sir, and the shooting, what are some memories that flash before you about Cars? And I made this reincarnation with the different faces. Yes. Normally movies were being made with same faces. So that gave me a good idea कि okay, this will be interesting. Suppose I am reborn and I meet these people, they don't recognize me. Now I'm with a different body. So I wrote the script, I made the film. But the film was initially not received well in the audience. I asked my manager in my merit, theatre manager, हाँ जी. क्या हुआ पिक्चर को. बोले साहब, एक तो जो गाने हैं बड़े फास्ट कटिंग के हैं, साइकेडेलिक लाइट आती है तो वो घबरा जाते हैं, बाहर चले जाते हैं गानों में. और दूसरा उनको ये बात समझ नहीं आ रही कहानी में कि अगर राज किरण की मौत हुई है तो ऋषि कपूर को क्या तकलीफ है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द सेंसिबिलिटी ऑफ द पीपल दैट टाइम क्या थी. बिल्कुल. जबकि शोले चली थी, बड़ी बड़ी फिल्में चली थी, कालीचरण चली थी. माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट यू हैव मेड फिल्म टाइम अहेड. आपने 10 साल पहले फिल्म बना दी. सो मैंने बोला अच्छा, हम टाइम से पीछे आ जाते हैं. देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस. दैट टाइम द ऑडियंस वाज मासेस. There was a front stall, mid stall, balcony. Today is a multiplex. There is only one kind of audience, or maximum A and B. So that is why the cinema today has gone urbanized. It is no more Indian cinema talking about the common man, common families, values, relationship. So in Hindi cinema today, they think in English, they write in English, they talk in English, they make in English, and the audience is Hindi. So the relation with audience is very important. Commercial cinema which connects to the Masses. pan India, जो गरीब से लेके अमीर तक, पढ़े लिखे से लेके अनपढ़ तक को भी समझ आए आपकी कहानी. बिल्कुल. वो मेरे हिसाब से पैन सिनेमा. Interview I was reading, you said that Rishi ji and you were not just fair weather friends, you all were real friends. Is there an instance, sir, from your career that you remember that Rishi ji was really there for you? He was always friend to me right from the beginning. I attended his marriage with Neetu. I remember in Raj Kapoor's party that time, I played dholak and sing a song for him, though I was a director by that time. Rishi Kapoor was very fond of me, and so I was. And I have been till the end of life. हम कभी भी मिलते थे तो ऐसे ही मिलते थे. और जैसे एक दोस्त को जैसे मिलता है ना, गधे तू कैसा है, गधे तू कैसा है, जो ये एक दूसरे को बोल सकते हैं ना, गधा या गाली में बात कर सकते हैं, उसको दोस्त बोलते हैं. तो वो भी मेरा दोस्त आखिर तक गाली वाला ही था, यू नो. तो यू कैन सी कि हाउ मच वी लव एंड रिस्पेक्टेड फॉर ईच अदर. लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ आल्सो आई मेट हिम, एंड he had some problem physical, and then he said, यार अब बहुत कर लिया मैंने, मैं जा रहा हूँ यार. तो मैंने ऐसा मत क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसे यार पता लग जाता है ज़िंदगी का कि अभी बाय बाय का टाइम आ गया है, अभी चलना चाहिए. इट्स ओके, फाइन, आई एम हैप्पी. सो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फेलो एज ए पर्सन. ही वॉज वेरी respectful to the society, nation, and morals, and relationship. उसके लिए ये नहीं है कि तुम्हारी पिक्चर नहीं चली तो तुम खराब हो. उसके लिए तो जैसे दोस्ती हो गई, जैसे रिश्ता बन गया, उसके बहुत से पुराने दोस्त एक ही साथ एंड तक रहे उनके साथ. मुझे नहीं याद कि कभी वो टाइम पर नहीं आया हो. मुझे नहीं याद कि कभी मैंने उसको कहा कि आज चिंटू आज 2 घंटे एक्सटेंड करना पड़ेगा,
हाँ करो. आज आपने उनको बहुत मिस किया होगा, ऑफ कोर्स सर. सब एक साथ Definitely. It हैं. was a very emotional moment for me. Yeah. Apart from the success and celebration of 45 years. हाँ जी. That's why I invited Neetu. I said, Neetu, you should come. Yeah. Because it's a very emotional moment for us. Of course, you've been a part of the industry sir nearly 55 years today. सर जब आप ये इंडस्ट्री को आज देखते हैं और इंडस्ट्री को के बारे में आप तब सोचते थे, आपको क्या लगता है क्या डिफरेंट इतना हो रहा है कि जो फिल्म्स रिलीज हो रही हैं दे नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, सो मच सो कि अब हमको फिल्म्स रिलीज करनी पड़ रही है, या बहुत से लोग अब सीक्वल्स बना रहे हैं क्योंकि वो एक ऑलरेडी नोन ऑडियंस है. या आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री को करना चाहिए कि री-इन्वेंट करने के लिए? आपको क्या लगता है क्या हो क्या रहा है अभी? You see, they must respect writers first. And writers who belong to the earthiness, to the genuine emotion of human mind. Making a film is a passion. Today, making a film is a business. कितना फर्क हो गया? बहुत. पैशन का नाम यूज कर लेते हैं, लेकिन वो यूज करते हैं. हम लोग घर बेच के फिल्में बना लेते. बहुत से लोगों ने मॉर्टगेज रख के पिक्चरें बनाई. राकेश रोशन ने भी बनाई, राज कपूर साहब ने भी बनाई, बहुत से लोगों ने बनाई. हाँ जी. मेरे पास तो घर ही नहीं था, तब भी चार पिक्चर बना चुका था, घर नहीं था. पैसे का कभी शौक रहा ही नहीं हमको. पैशन है एक अच्छा सीन लिखने का, एक अच्छा गाना लिखने का, एक अच्छा कहानी लिखने की. मुझे ज़रूरत है उस आदमी की कि मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ. नहीं, आप और मैं बैठे मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं. जब तक आप मेरी बात को दिल से नहीं सुनेंगे और मैं दिल से नहीं बोलूँगा, वो बात में ही कोई मज़ा नहीं है. बिल्कुल. तो ऐसा लगेगा मैं राजनीति की तरह मैं बात कर रहा हूँ. तो ये कम्युनिकेशन जो है वो सिनेमा मेकर का और ऑडियंस का भी रहना चाहिए. वो लैकिंग है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त आज के टाइम. ये मेरा कहना है. योर पैशन इज बिजनेस नाउ, योर पैशन हैज़ टू बी आर्ट. तो आप आर्ट से कनेक्ट होंगे. जब तक आप ये मेंटालिटी नहीं डालेंगे बच्चों में, तब तक नहीं होगा. मीटिंग होगी, डिबेट होगा, पॉलिटिक्स होगी, बस. मेरा ये मानना है कि जो फिल्म्स होते हैं वो एक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है और सोसाइटी भी फिल्म्स को इन्फ्लुएंस करती है. पर जब ऐसी फिल्म्स बनती है सर जो सोसाइटी को एक एडवर्स इफेक्ट छोड़ जाती है सोसाइटी पे, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और अ पार्ट ऑफ फिल्म्स दैट मे बी हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सोसाइटी? और देखिए, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शुरू से नहीं, आज 100 साल से हाँ जी. 3 तरह के प्रोड्यूसर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेज रहे हैं. एक जो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं सोसाइटी के लिए, दूसरे जो आर्ट सिनेमा से बहुत प्यार करते हैं, एक जो है 1/3 है वो परवाह ही नहीं करते हैं. मेरी पिक्चर चलनी चाहिए, बस पैसा कमाना चाहिए. तो ये 3 तरह के लोग पहले भी थे, आज भी हैं. देयर आर फिल्म मेकर्स और रिस्पॉन्सिबल कि आई मस्ट कन्वे माई मैसेज टू द ऑडियंस. तो रिस्पॉन्सिबल भी थे पहले, आज भी हैं. आर्टिस्टिक पहले भी थे जो कि बियॉन्ड द बाउंड्री भी जा सकते हैं. लेकिन कुछ खाली धंधा, पैसा. सर आपको लगता है कॉर्पोरेट कल्चर का इन्फ्लुएंस इस पे जो रहा है वो भी उसकी वजह से भी ये थोड़ा डिफरेंस आया है? वो गणित अलग हो गया ना. स्टॉक एक्सचेंज आ गया. पहले क्या होता, हम घर बेच के प्रोड्यूसर, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर थे, अपना सब कुछ लगा देते थे. अभी मेरे को सब कुछ नहीं लगाना है. जो भी देना है स्टूडियो ने देना है, स्टूडियो ने आगे स्टॉक एक्सचेंज से लेना है. बिल्कुल. तो मेरा पैसा मुझे दे दो, काम हो गया भाड़ में. तो एवरीबडी इज टेकिंग हिज मैक्सिमम मनी. तो मनी हैज बिकम ए प्रायोरिटी टुडे. किसी का कोई नुकसान नहीं. पिक्चर बन रही है, बनते जा रही हैं, नहीं चलती तो क्या हुआ? बैलेंस शीट ही खराब होगी ना. हो होने दो. हमारा काम हो गया, हमने अपना घर बना लिया. आपके करियर में आपने इतने एक्टर्स को डायरेक्ट किया, इतने टैलेंटेड एक्टर्स को डायरेक्ट किया, सुपरस्टार्स को डायरेक्ट किया. जब आप सुपरस्टार्स के बारे में सोचते हैं और आज की जनरेशन को देखते हैं, कि आपको लगता है कि डेफिनेशन ऑफ सुपरस्टार चेंज हो गया है? और अगर इस जनरेशन से 90s के बाद से क्या आपको लगता है कोई ऐसा एक्टर है जो सुपरस्टार कहला सकता है? स्टार इज एन इमेज, यस, इल्यूजन है ना. वो रियलिटी नहीं है. तो इमेज में एक आदमी बात कर रहा है ऑडियो वीडियो में, और मैं उसको देखता हूँ और प्यार हो जाता है मुझे. मैंने सामने तो देखा ही नहीं, लेकिन वो कहानी के अंदर जो कैरेक्टर कर रहा है उस कैरेक्टर से मुझे प्यार हो जाता है. वो जब कैरेक्टर से प्यार होना हो जाता है तो मुझे एक्टर अच्छा लगने लग जाता है. फिर और अच्छा एक्टर करता है और अच्छा सब्जेक्ट लेता है. अब मुझे लगता है यार जब भी मैं इसकी फिल्म देखूँगा ना मज़ा आएगा.
ये बंदा अच्छी पिक्चर कर रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस करता है, फिर वो आस्ता आस्ता सुपरस्टार बन जाता है, स्टार से ऊपर कराता है। अपना कैरेक्टर भी मेंटेन रखता है, अपने वैल्यूज़, सोसाइटी की, नेशनल बिल्डिंग की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी रखता है। फॉर सुपरस्टार्स वर द गुड फिल्म्स दैट दोस टाइम। दिलीप कुमार से टेक मनी अवे, गिव मी गुड स्क्रिप्ट। अभी यह है कि स्क्रिप्ट कर लेंगे बैठ के काम, पैसा क्या देते हो, तो फर्क तो होगा। टुडे यू आर ए exposed person, there is nothing called privacy. So it is better for you to be a better human being. आज छिपा नहीं सकते कुछ भी, बल्कि आप अगर ग्रे भी हैं तो आपको ब्लैक बुलाया जाएगा, अब वाइट है तो आपको ग्रे कहा जाएगा, क्योंकि उसकी ट्रोलिंग, कंट्रोवर्सी, 2 पर्सपेक्टिव, 3 पर्सपेक्टिव तो आएंगे। और मीडिया हैज़ गॉन नाउ बिग वे ऑल अराउंड। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, but we have to use it in a more positive way. We have to use it in more constructive way. Thank you so much, sir, for talking to me, and congratulations again for 45 years of Curse. Thank you, sir. Wonderful.